ਇਹ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ 11 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਇਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ, ਡਾਕਟਰ ਜੈਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 11 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਏ ਬਰਥ ਡੈਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। हाँ बिल्कुल जी, पर ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਟੂ एवरीवन। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੂੰ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਈਪੀ ਸਿੰਘ RWA ਸੈਕਟਰ 11 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਲਮੋਸਟ ਐਟ ਦਿਸ ਏਜ ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ PGI 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਡੋਰ ਸਟੈਪ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਯੰਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ओल्ड एज हैगी है वो सुखावी होएगी। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। सो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर प्रोवाइडिंग इट। It is in the interest of the general public and especially for old age people, which I really appreciate the step which you have taken, and such camps should be organized on regular basis at every end of the Chandigarh. I wish them all the success in this. Thank you very much. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ 11 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਵੈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। आज का कैंप जो है हियरिंग स्क्रीनिंग कैंप है। इसमें जिन लोगों को हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनकी स्क्रीनिंग हम कैंप इस हेल्थ जो वैन है, मोबाइल वैन है, इसके थ्रू करते हैं। तो इसमें पेशेंट को ये फ़ायदा है कि जो टेस्ट हम मशीनों पे PGI में करते हैं या दूसरे हॉस्पिटल में जाके करवाते हैं, वो सारी मशीनें इस वैन में हैं। इसमें करीब 25 हियरिंग टेस्ट होते हैं और सारे एडवांस टेस्ट भी इसी वैन में होते हैं। तो पेशेंट को चेक भी करते हैं, साथ के साथ ही उनका हियरिंग टेस्ट भी हो जाते हैं, और पेशेंट को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में रश बहुत होता है, वहाँ पे वेट करनी पड़ती है, लंबी लाइंस है चेकअप के लिए। तो इस वैन का ये फ़ायदा है। और ये वैन जो है प्रोजेक्ट हमें चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी से मिला है। हमने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया था चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी, एंड ये वैन जो बुजुर्ग है जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कहाँ जाना है टेस्ट करवाने, जिनको हियरिंग की प्रॉब्लम है और सुनाई की प्रॉब्लम के कारण वो लोग बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं, दूसरों से बात नहीं कर पाते, फैमिली मेम्बर्स भी उनको नेगलेक्ट करते हैं, रिश्तेदार भी उनसे बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको बुजुर्गों को सुनता नहीं है। तो उनकी भलाई के लिए ये एक प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया था, ताकि हम डोर स्टेप पे जाके उन लोगों को जांच उनके घर पे ही कर सके, उनकी सुनाई की जांच उनके घर पे करके उनको हियरिंग एड एडवाइस कर सकते हैं, या और कोई अगर उनके कान में प्रॉब्लम है तो उसका कोई और अगर सर्जरी से उसका समाधान होना है तो उसके लिए उनको हॉस्पिटल बुला सकते हैं। तो ऐसे ही इस प्रोजेक्ट के थ्रू
टोटल ये शुरू हुआ था 2023 अक्टूबर 2023 में प्रोजेक्ट, और इसमें हमने 2187 पेशेंट स्क्रीन किए, इतने लोगों की जांच की, और उनमें से 187 पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा हियरिंग की प्रॉब्लम थी, जो कि 8 to 9% के तक परसेंटेज आती है। तो इतने सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है। और बाकी जो 2008 पेशेंट थे जिनको हियरिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, उनको ईएनटी की बाकी प्रॉब्लम्स थी, जैसे किसी को एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस, जुकाम, खांसी, कईयों का गला खराब पाया गया, और टिनिटस की प्रॉब्लम कईयों में पाई गई। कान में जो साउंड आती है, आवाज़ें आती है, घंटियाँ बजती है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो पेशेंट की लाइफ को या किसी भी नॉर्मल इंसान की लाइफ को भी प्रॉब्लम दे सकती है। तो उन पेशेंट को भी हमने ट्रीटमेंट एडवाइस किया, बाकी जो पेशेंट थे। और जिन पेशेंट को हियरिंग लॉस था बहुत ज़्यादा, उनको हियरिंग एड एडवाइस की गई, और उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ? ऑपरेशन के लिए हम पेशेंट को पीजीआई बुलाते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पीजीआई भी इसमें प्रोजेक्ट में, मैं वहाँ से प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ। हमने ही ये प्रोजेक्ट सबमिट किया था। डॉक्टर धर्मवीर मेरे साथ को इन्वेस्टिगेटर है। हम दोनों पीजीआई में ईएनटी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। मैं प्रोफेसर हेड हूँ डिपार्टमेंट की, डॉक्टर धर्मवीर एसोसिएट प्रोफेसर है। तो मैं पेशेंट की जाँच करती हूँ, डॉक्टर धर्मवीर उनके हियरिंग टेस्ट करते हैं, और ऑपरेशन फिर हमारा जो टीम है वो सारी करती है। मैं भी ऑपरेशन करती हूँ, बाकी मेरे टीम मेंबर्स भी ऑपरेशन करते हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, जो पेशेंट है आपके पास कब कब आए? पेशेंट चेकअप के लिए ओपीडी डेज पे आ सकते हैं। मेरी ओपीडी मंडे और वेडनेसडे, सोमवार बुधवार है। तो इन दोनों दिनों में पेशेंट सुबह आके 9 बजे अपना कार्ड बनवाएं, और 2-3 बजे तक ओपीडी चलती है। तो तब तक हम पूरा ओपीडी में होती है पूरी टीम। वहाँ पे हियरिंग टेस्ट भी हो जाते हैं, चेकअप भी हो जाता है, और सारे टेस्ट बाकी और टेस्ट भी हो जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रामलाल। क्या प्रॉब्लम थी आपको? प्रॉब्लम ये था, सांस टीबी, मैंने सांस और खुजली अजली पहले शुरू से चलने लग गया था, माथा में खुजली होने लग गया था, एलर्जी। उसके बाद फिर इलाज शुरू होने लग गया। 27-37 सेक्टर डॉक्टर साहब के पास इलाज शुरू हुआ। वहाँ से 8 महीना इलाज चला, दवाई टीका के साथ। दवाई भी साथ साथ शाम को टीका भी लगना शुरू हो गया। 8 महीना तक चला। उसके बाद 9 महीना तक दवाई चला। 9 महीना के बाद वही मिर के माने सांस, खुजली, माथा में कैंसर की अंश पूरा माथा में भर गया। 6 साल, पौने 6 साल हो गया। उसके बाद मिर के आँख में ऑपरेशन हो गया। कैंप के द्वारा पता चला, फिर मैडमों ने सबने हेल्प करा हमारे। फिर कहाँ पहुँचे फिर? बहुत 7 साल से पहुँचते पहुँचते तो आखिर में आके पहुँच गए। फिर इनको ऑपरेशन हुआ पीजीआई के थ्रू, ये कैंप के थ्रू पीजीआई से हुआ। डॉक्टर साहब के द्वारा से ऑपरेशन माने कि दोनों आँख में हुआ। फिर ऑपरेशन 3-3 महीना के बाद हुआ दोनों आँख में। फिर उसके बाद जब आवाज़ नहीं खुलने लग गया, तो फिर डॉक्टर साहब बोले कि अब ऐसे नहीं होगा। फिर वहाँ रेफर कर दिए हैं सुहाना। सुहाना के बाद माने वहाँ जाकर ऑपरेशन हुआ। बहुत माने कि दुख हुआ, उम्मीद नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब के भरोसे पर माने कि ऑपरेशन हो गया। इन्होंने रेफर कर दिए सुहाना, वो भी डॉक्टर साहब, मैडमों ने भी करा, सर ने करा, बहुत हेल्प करा, तभी हमारे आगे इतना पहुंच पाए हम। नहीं तो हम 7 साल से हमने उम्मीद खो दिया। गरीबी की वजह से माने कि इतना टाइम लग गया ऑपरेशन से। फिर भी डॉक्टर साहब बहुत मदद दिए। उन्होंने भी, सुहाने वाले डॉक्टर साहब भी बहुत माने जिंदगी वापस किए हैं। मैं सबका आभारी डॉक्टर साहब का हूँ। मैं 7 साल हो गया है बीमारी से, अब थोड़ा हो रहा है। ये बताओ ना कि सोहाना से आपको पैसा भी मिला है इम्प्लांट के लिए? हाँ, पैसा तो था ही नहीं, तो जनता जी दिए, पैसे दिए, सुहाने वाले भी डॉक्टर साहब ने पैसे दिए, मैडम ने दिए, सबने दिए, हेल्प करा। फिर आगे जहाँ हम जहाँ इतना काम आगे करते बढ़ते थे थे। वहाँ उन्होंने दिए, मदद दिए। अभी आपको ठीक सुनाई दे रहा है ना? हाँ भाई, क्लियर नहीं है, बाकी सुनाई दे रहा है। हाँ जी, बोल रहे हैं? जी।
क्या काम कर रहे हैं अभी आप? बस इन्हीं जो अभी आए थे साहब उन्हीं के पास में कोठी में कर रहा हूँ। मैं रखती हूँ वजन का अकेले काम घर पे, नहीं हम है। दोनों मियाँ बीवी हैं तो हम इनको अपने साथ ही रखते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे हमारे साथ हेल्प करा। ठीक है, ठीक है। आपके बच्चे भी हो गए? बच्चे तो हैं। लड़की हैं तो अपने घर हैं शादी करके, अच्छा। और लड़का निकम्मा लापता है, वो 1.5 साल 2 साल हो गया उनको लापता है। वो भी थोड़ा गलत रास्ते में आ गया तो वो भी घर से निकला हुआ है, उनको भी 2 साल हो गया है लड़के को, एक ही लड़का है। इस टाइम हम घर पे कोई भी नहीं है, हम कोई ही दो सहारा हैं। देने वाला नहीं था, बहुत दुख है। बीमारी का पता नहीं चलता था कि बीमारी लगेगा। आपका भी ऑपरेशन? हाँ जी, दोनों एक तो आंखों का। गरीबी था, गरीबी की वजह से माने कि टाइम भी, फिर भी लोगों ने बहुत मदद दिए हैं। जिनके पास पैसा था उन्होंने बहुत मदद दी है। अब कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है आपको? जी, अब क्या महसूस हो रहा है? बस महसूस तो यही है कि भगवान ऊपर वाले ने भेजा है, जो मदद दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिंदगी वापस हो रहा है आस्ते आस्ते। तो डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब तो साक्षात भगवान है हमारे लिए, उन्होंने ही रास्ता मुझे आगे दिखाया। कैंप में आए, फिर सर मिले, डॉक्टर साहब मिले, तो उनके आगे ही हमने इतना आगे पहुंच पाए। नहीं तो हम गरीब आजकल यहाँ पे कौन पूछता है किसको, कोई किसी को नहीं पूछता है। पर पता नहीं भगवान के जैसे रूप में आए और हमें रास्ता दिखाया, हम इतना आगे पहुंच गए। हमें डॉक्टर साहब का तो बहुत साथ भगवान है हमारे लिए डॉक्टर साहब। गरीबी जी, को कहाँ से मिलेगा 7 लाख रुपए? 7 लाख रुपए है डॉक्टर साहब ऐसे तैसे हुआ तो वहाँ रेफर किए, फिर उन्होंने भी मदद दी है, तब जाके ऑपरेशन हुआ सुहाने। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਕੋਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। NRI ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ NRI ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो दसो जी, तुसीं किन्ने चिर बाद तुहानूं आवाज़ सुनी है? तो इलाज डॉक्टर साहब के द्वारा से बहुत अच्छा इलाज हुआ है। तो गरीबी की वजह से बहुत मैंने परेशान थे, और आप लोग को मेहरबानी से माने कि ऑपरेशन हुआ सुहाना में। काफी टाइम बाद डॉक्टर साहब आवाज रेफर आई है किए, इनकी, काफी टाइम बहुत दुख बाद हुआ, मतलब इनकी बहुत आवाज आई गरीबी है। के वजह से जूना पड़ा, सुनाई पड़ता है बाकी। ये दिन मुँह करो। ये 6.5 लाख का जी इंस्ट्रूमेंट जोड़ा लगा इन्होंने।